morning, all of you. Today's is literature turn class 10. A letter to God. A letter to God. G.L. Fuentes. Fuentes. इसके राइटर हैं बच्चों। जैसे कि स्पष्ट है, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र यानी ईश्वर को एक पत्र। In this chapter, G.L. Fuentes describes about a poor farmer which name was Lencho. He lived in a top of low hill. It was situated in the top of a valley. He was very poor. Everything was his, only his crop of the field. He was very careful to know that if rain fall, then his crop will be good and better. It was good news for him when he saw approaching clouds towards northeast. He predicted that if rain fall, then his crop will be good. You know that he was dependent fully. He was dependent totally in the crop of his field. He said to his wife, and in his reply, his wife also said that if God wills, it is certain that God fulfill any kinds of desire if we want it. Yes, after that, the rain began to fall, and he said, Lencho said that these are not rain drops, but also these are silver coins, little raindrops like 5 cents, and the big raindrops like 10 cents pieces. After that, a storm blew, and hailstones began to fall. After an hour, they covered all over the valley and in the field. Like salt, there were nothing but only hailstones. His crop was totally destroyed. He was very sad. In the middle of the field, he said to his sons that this is very dreadful night. I will hungry this year because there is no crop anywhere. A group of locusts also left more than this hailstone. But he said that he has only one hope, help from God. So he next day went to the town and took up an envelope and started to write letter to God.
in first he wrote to God, I need 100 pesos money because my crop is totally destroyed dot dot due to a heavy hailstorm. And at last he signed as Lencho and put up letter into envelope and fixed a storm and dropped it into mailbox. Next Sunday he came earlier to know about the letter, and he found that letter was already there. A postmaster gave him his letter, but after dropping of the letter, when the postmaster found the address of the God, he became very surprised and he showed the letter to God, to his boss, postmaster. He also became surprised to know that in his career he never shown as such letter to God. So he was very anxious to know. At last he decided to help him and he declared that he would give a part of his salary, and many other employees gave him money also. But he could only collect 70 pesos of money and he put it in an envelope, and at the last in the paper he wrote only God as a signature. When Lencho came earlier to take a letter to God, then he found that it was not surprising that he was great confidence that God would not deny what he demanded as 100 pesos money. So he opened the letter and counted money, but he found only 70 pesos money. He became very sad and he went to the booking window and took a letter again and started writing, saying it that God would not deny him as he demanded, but he has urgent need of money, so please send me rest money because I have urgent need of it. But you don't send it by mailbox because the employees of the post office are very crooked. It means very dishonest. ये थी बेटी समरी। अब मैं हिंदी में स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आखिर लेसन में है क्या। लेटर टू गॉड जैसा टाइटल दिया गया है, भगवान को एक पत्र। इसमें मुख्य पात्र आपका लेंचो है। लेंचो नामक एक किसान एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक घर में रहता है। उसमें उस परिवार में उसके बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। आस पास भी कई घर हैं, लेकिन बहुत छोटा सा क्षेत्र है। ये शायद उत्तरी भारत का हो या कहीं अन्य का हो, सिर्फ देश का कोई जो है यहाँ पर सिचुएशन नहीं दिया गया है, किस स्थान का यहाँ पे दृश्य दिया गया है। लेकिन जैसा कि दर्शाया जा रहा है कि पहाड़ी पर स्थित था और उसकी ऊंचाई से कोई भी नदी और खेतों को आसानी से देख सकता था। लेंचो
जिसने उत्तर पूर्व की ओर देख करके कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में उसने कहा कि यदि थोड़ी सी वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती। जैसा कि उसने घोषणा की थी, उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल आने लगे और पानी बरसने लगा। वो बहुत खुश हुआ और उसने ये भी कहा कि पानी नहीं, ये बल्कि सिक्के बरस रहे हैं। छोटी छोटी बूंदें हैं, 5 पैसे के सिक्के, और बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के के रूप में गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी, तूफान आया और पानी के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। ओले करीब 1 घंटे तक गिरते रहे। पूरी संपूर्ण घाटी, खेत और मैदान ओलों से ढक गया जैसे नमक से ढका। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उस रात सुबह अपने खेत पहुंचा और वो अपने खेत के बीच में खड़े होकर के बोला, प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही अफसोस भरा है, क्योंकि आज फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और ये फसल ओलों के कारण बर्बाद हुई है। अब सिर्फ एक ही मदद है, ईश्वर की मदद की आवश्यकता है और अन्य किसी तरह की मदद नहीं मिल सकती। लेकिन याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है, ऐसे सब जो ने कहे। और वो सीधे अगले दिन पोस्ट ऑफिस पहुंचा, शहर गया, शहर में पोस्ट ऑफिस पहुंचा। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र लिया और पत्र लेकर के उसने पत्र लिखा राइटिंग टेबल पर बैठ करके, सार्वजनिक टेबल पर, और उसमें ये डिमांडिंग करते हुए लिखा कि हे प्रभु, ओलों के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई है और इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए 100 पीसोस भेजने की कृपा करें, क्योंकि मुझे फसल होने तक, फसल नई फसल आने तक और बीज होने के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। और उसने एक टिकट लगाया और पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने डाकिया पत्र निकालने के लिए आया। उसने सारे पत्ते छाटे, एक पत्र उसके हाथ में लगा जिसमें ईश्वर का नाम लिखा था, टू द गॉड। पहले तो उसे बिलीव नहीं हुआ, फिर वो जाकर के पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्टमैन ने, पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा पत्र देखते हुए, क्योंकि उसके अपने पूरे करियर में इस प्रकार का कभी पता और इस प्रकार का पत्र नहीं देखा। फिर तुरंत गंभीर हो गया और उसने सोचा कि कितनी अटूट श्रद्धा है इस व्यक्ति में, काश इसको केवल पत्र से ही मतलब नहीं है, इसको मदद की जरूरत है। इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से इस बात को बताया। कर्मचारियों ने भी उसको बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। उसने अपनी तनख्वाह का हिस्सा निकाला, लेकिन वो 100 पीसोस नहीं कलेक्ट कर सका, 70 पीसोस ही कलेक्ट कर सका। उसने उसे लिफाफे में रखा और हस्ताक्षर के रूप में उसने गॉड लिख करके वो पत्र पेटी में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह लेंचो आया पत्र मांगने के लिए, तो पोस्टमैन ने उसे पत्र दिया। पत्र पाकर वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मांग को कभी ठुकराएंगे नहीं। जैसे उसने पत्र खोला, उसमें पैसे देखे और पैसे गिने, उसे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मैंने डिमांड की थी 100 पीसोस की, उसे 70 पीसोस मिले। लेकिन उसने ये सोचा कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकते, ये पैसे कम कहाँ से हुए। उसे विश्वास हुआ कि ये कर्मचारी ही बेईमानी कर सकते हैं। उसने फिर से पत्र लिखना शुरू किया और पत्र में लिखा कि हे भगवान, आपने जो पैसा भेजा है पूरा मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे शेष धन भेजने की कृपा करें, लेकिन इसे डाक के द्वारा मत भेजें, क्योंकि डाक कर्मचारी बेईमान होते हैं। ये पार्टी समझे बच्चों, अच्छा लगा होगा, पढ़ करके समझ गए होंगे। अब मैं इसका डिटेल पढ़ाने जा रहा हूँ, एक एक पैसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अ लेटर टू गॉड। इसमें आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो बुक खोलिए और फटाफट ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। द हाउस,
the only one to the entire valley sat on the crest of a low hill. वो घर sat on यहाँ पे लिखा है was situated पर स्थित था in the entire valley शंभू घाटी में on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अकेला घर संपूर्ण घाटी में स्थित था जो निचली पहाड़ी पर स्थित था। उसकी ऊंचाई से कोई भी पकी हुई फसल और खेत को देख सकता था जो फूलों से ढकी हुई थी, फूलों से कवर थी और उस वर्ष अच्छी फसल की प्रतीक थी। The only things the earth needed was a downpour or at least a sower. जमीन को यानी उस भूमि को, खेतों को केवल हल्की वर्षा या ठीक है फुहारों युक्त वर्षा की जरूरत थी। The who knew his field infinitely, जो अर्थात लेंचो जो अपने खेतों के बारे में निश्चित रूप से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उसने कुछ नहीं किया लेकिन उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखा। ये फर्स्ट आपका पैसेज है, आप आगे पढ़ेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय अब हम कुछ पानी अर्थात वर्षा हमें मिलने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उस स्त्री ने जो रात्रि का खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड विद द स्मॉलर while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सभी को बुलाया, आओ खाने के लिए आओ, come for dinner. It was during the meal, ये भोजन का समय था, that just as लेंचो had predicted, ठीक जैसे ही लेंचो ने घोषणा की थी, big drops of rain began to fall, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। प्रेडिक्टर माने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी। began to fall, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। in the northeast whose mountain of clouds could be seen, उत्तर की ओर आकाश में बादल दिखाई देने लगे। the air was fresh and sweet, हवा बहुत ही कैसी थी, स्वच्छ और सुगंधित थी। The man went out for no other reason than to have the pleasures of feeling the rain on his body. वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु अपने शरीर में मिलने वाली वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। When he returned, जब वो लौटा, he exclaimed, उसने विस्तार से बताया, क्या बताया? There are not raindrops falling, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं from the sky, आकाश से। They are big coins, वे नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents pieces, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं। And the little ones are 5, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain. एक संतुष्ट भाव से उसने वर्षा की चादर में लिपटे हुए अपने पके हुए अनाज और उसके फूलों से भरे हुए खेत को देखा। But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। And along with the rain, very large hailstones began to fall, और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई देते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls.
लड़के अपने कपड़े उतार कर खुले शरीर से उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए घरों से बाहर दौड़कर आ गए। बच्चों, अच्छी तरह इसको समझना है, पढ़ना है। थैंक यू।